بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پاک پروردگار کے نام سے آغاز جس کی رحمتیں سمندروں سے وسیع، جس کی محبت آسمانوں سے بلند اور جس کی مصلحتیں انسان کی سمجھ سے کہیں زیادہ گہری۔ وہ رب جو کبھی بھی اپنے بندے کو بے وجہ نہیں تھکاتا، بے مقصد نہیں رلاتا اور بلا حکمت کسی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ بندے کا ہر آنسو، ہر ٹوٹن، ہر دکھ کوئی حادثہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا پوشیدہ بلاوا ہوتا ہے۔ کیا بلاوا؟ میرے قریب آ جاؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہیں سن رہا ہوں۔ کچھ تکلیفیں انسان کو اللہ تک لے آتی ہیں، کچھ دکھ ایسے معتبر ہوتے ہیں کہ روح کو رب کے در تک پہنچا دیتے ہیں، کچھ بے خوابیاں ان ملاقاتوں کا وسیلہ بن جاتی ہیں جو تقدیروں کا رخ بدل دیتی ہیں، اور جب کوئی دل رات کے سناٹے میں سہارا ڈھونڈتا ہے، جب کوئی بندہ اپنی نیند قربان کر کے رب کی چوکھٹ پہ روتا ہے، تو یقین کرو وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، عرش پر سنبھالے جاتے ہیں۔ وہ سجدے جن میں دل پگھل کر اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، وہ سجدے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ تہجد، وہ لمحہ جب آسمان کھل جاتا ہے۔ تہجد کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ عشق کی نماز ہے، یہ رازوں کی نماز ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو صرف خاص بندوں کے لیے کھلتا ہے۔ رات کا آخری پہر، وہ وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ وقت جب خاموشی چیخ چیخ کر کہتی ہے اب آؤ، رب کا در کھلا ہے، کوئی ہے مانگنے والا۔ تہجد کا سجدہ وہ سجدہ ہے جس میں گرتا انسان ہے لیکن اٹھتا وہ نہیں، اس کی تقدیر اٹھتی ہے، اس کی دعائیں اٹھتی ہیں، اس کی قسمت جاگ جاتی ہے۔ ایک آنسو، صرف ایک آنسو اگر تہجد میں بہہ جائے نا تو پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اتنی طاقت ہے تہجد کے آنسو میں۔ یقین، وہ راز جو معجزوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں بار بار ایک ہی دعا کا خیال رکھا ہے، اگر تم اسے بھولنا چاہو اور وہ دعا پھر بھی دل کے اندر موجود رہے، دل میں قائم رہے، تو یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے، خاص اشارہ ہے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ صرف وقت باقی ہے۔ دعا دل میں آتی خود سے نہیں، رب ڈالتا ہے۔ وہ زبان کو مانگنے کی طاقت تب دیتا ہے جب وہ عطا کرنے کا ارادہ کر چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے بار بار وہی دعا یاد آتی ہے، اسی لیے دل کے اندر ایک نام، ایک خواہش، ایک منزل، ایک امید بار بار جاگتی ہے۔ یہ کوئی کمزور سا احساس نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی روشنی ہے۔ اللہ معجزے کیوں دیر سے دیتا ہے؟ کیونکہ معجزہ ہمیشہ صحیح وقت پر آتا ہے۔ وقت سے پہلے مل جائے تو آزمائش بن جاتا ہے، وقت پر ملے تو زندگی بدل دیتا ہے۔ اور کبھی بھی دعا رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ وہ یا تو فوراً دے دیتا ہے، یا بہتر بنا کر دیتا ہے، یا اتنا بڑھا کر کے دیتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ کبھی دعا اس لیے تاخیر سے پوری ہوتی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ تھوڑا اور مانگ لے، تھوڑا اور جھک جائے، تھوڑا اور میرے قریب آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ صحیح وقت آتا ہے تو وہ ایک کن کہتا ہے اور وہ سب کچھ تمہارا ہو جاتا ہے جسے تم ناممکن سمجھتے رہے۔ تہجد رب کا خاص بلاوا۔ تہجد کی توفیق کوئی اپنی طاقت سے نہیں پاتا، یہ منتخب ہونے کا ثبوت ہے، نشانی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے در کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں تہجد کی طرف بلا لیا ہے تو سمجھ لو تم اس کے محبوب بندوں میں شامل ہو۔ وہ تمہارے لیے کچھ بڑا لکھ چکا ہے، وہ تمہیں اپنی خاص رحمت کے لیے چن چکا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں نصیبوں کا رخ بدل دیتی ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ وقت جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، جب دل پھٹنے لگتا ہے، جب آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جب زبان روتے ہوئے الفاظ ادا کرتی ہے، عرش والے متوجہ ہو جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اے رب، اے رب،
तेरी तरफ हाथ उठे हैं, तेरे सामने दिल खुले हैं, तेरे सामने बंदा गिड़गिड़ा रहा है। और अल्लाह कहता है, कहो क्या मांगते हो, क्या फरियाद लाए हो, किसके लिए रो रहे हो, किस दुख का मदावा चाहते हो। कहो मेरे बंदे, मैं सुन रहा हूँ। ये मंजिल ज़मीन वाले नहीं जानते, ये राज सिर्फ तहज्जुद वाले दिलों को नसीब होता है। तहज्जुद दर्दों की शिफा है। दुनिया में कोई ज़ख्म ऐसा नहीं जो तहज्जुद में ना भरे, कोई टूटन ऐसी नहीं जो तहज्जुद में ना जुड़े, कोई दुआ ऐसी नहीं जो तहज्जुद में ठुकरा दी जाए। तहज्जुद के सजदे दर्द को गुलाब बना देते हैं, ज़ख्म को नसीहत कर देते हैं, दुआ को तकदीर बना देते हैं। जब अल्लाह खुद बुलाता है, कुछ रातें बेवजह नहीं जागती, नींद का ना आना भी एक इशारा होता है। और अब कहता है, मेरे बंदे आज रात मुझसे बात कर लो, अपना बोझ उतार दो, अपने दिल की कहानी कह दो, मैं सुनूंगा, मैं तुम्हें थाम लूँगा। और जो बंदा इस बुलावे पर लब्बैक कहता है, वो कभी खाली नहीं लौटता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है, हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुँह करना, तो ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी होगी। हज़ारों ख़यालात में से तुम्हारी अक्ल का मौजज़ों की आस पर रुक जाना बेवजह नहीं होता। अल्लाह दिल में उम्मीद डालता है तो फिर खाली नहीं लौटाता। जानते हो, तहज्जुद की नमाज कोई आम नमाज नहीं है, ये इरादों को पुख्ता करने वाली और दुआओं को कबूल करवाने वाली नमाज है। वक्त तहज्जुद खामोश आँखों से बहते हुए आंसू और अल्लाह के सामने बैठे हुए बेबस इंसान की फरियादें कभी भी ज़ाया नहीं जाती। यकीन रखने वालों के लिए राहें कभी बंद नहीं होती। जब इंसान खुलूस नीयत से अपने रब को पुकारता है तो दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अगर तुम्हें कभी लगा हो कि दुआ कबूल नहीं हो रही तो सब्र करो, क्योंकि वो वक्त बेहतरीन चुनता है। तुम्हारी दुआ तुम तक ज़रूर वापस आएगी, कबूलियत के तोहफे संग लाएगी। अल्लाह ताला अपने बंदों की सच्ची पुकार को रद्द नहीं करता। तहज्जुद की नमाज इंसान को मुत्तकी बना देती है, परहेज़गार बना देती है, और फिर अल्लाह अपने मुत्तकी बंदों की दुआएं बहुत जल्द कबूल करता है। और जो मुत्तकी बन जाते हैं ना, वो आजिज़ी इख्तियार कर लेते हैं, और अल्लाह ताला को आजिज़ी बहुत पसंद है। कभी तुमने रात के आखिरी पहर का रंग देखा है? वो रंग जो ना स्याह होता है ना सफ़ेद, वो रंग जो सजदे की नमी में रच बस कर रूह की पेशानी पर चुपके से उतर आता है। जानते हो वो कौन सा रंग है? वही तो तहज्जुद का रंग है। रोशनी की एक बेआवाज़ कौसे कज़ा। और तहज्जुद का रंग वो नहीं जो आँखें देखती हैं, बल्कि वो है जो दिल महसूस किया करते हैं। जो रंग कायनात की ज़ाहिरी पेंटिंग से मुआवरा है। ये रंग खामोश होता है मगर सब कुछ कह देता है। ये रंग बोलता नहीं मगर दिल की सब चीखें सुन लेता है। ये वो रंग है जो आंखों से बहने वाले आंसुओं में घुलता है। ये रंग सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो तहज्जुद पढ़ते हैं। कभी तुम खुद को तहज्जुद के बाद देखना, तुम्हारे चेहरे पर वो नूर, वो सुकून, तुम्हारे दिल में वो अजब सा हल्कापन, यही सब तहज्जुद का रंग है। तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं, ये मौजज़ों की नमाज है। ये उन दुआओं की नमाज है जो दूसरों के लिए नामुमकिन होती हैं मगर रब के लिए सिर्फ कुन फायकून होती हैं। तहज्जुद वो लम्हा है जो दुआओं की कबूलियत के लिए ख़ास किया गया है, अल्लाह के कुर्ब के लिए मखसूस किया गया है और अल्लाह के ख़ास बंदों के लिए चुना गया है। जो बंदा वक्त तहज्जुद अपने रब से हम कलाम होने के लिए उठता है ना, वो अल्लाह के यहाँ आम नहीं रहता, वो ख़ास हो जाता है, बहुत ही ख़ास हो जाता है। तहज्जुद में मांग कर देखो, पढ़ कर देखो, फिर देखना अल्लाह अपने सारे मौज़े तुम्हारे साथ खड़े कर देगा और तुम भूल जाओगे आजमाइश का दुख
सारे सब्र का सिला तुम्हारी ख्वाहिश की कबूलियत से मिलेगा इंशाअल्लाह। कहते हैं जाए नमाज पर बैठकर नहीं रोया करते, क्योंकि अगर आह सुन ली जाए तो दिल दुखाने वाले बर्बाद हो जाते हैं। और कैसे मुमकिन है कि आह निकले और अल्लाह ना सुने, सिसकियों की पुकार हो और अल्लाह ना सुने। वो सुनता है, तुम्हारी हर खामोशी बहते आंसू पढ़ लेता है। वो फिर कैसे मुमकिन है कि वो सुन के अनसुना कर दे। वो मेहरबान अनसुना नहीं करता, क्योंकि वो मेरा रब है, वो आपका रब है, वो सारे आलामीन का रब है। याद रखो, अगर तुमने तहज्जुद में मांगा है तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। देर से हो सकता है, मगर जो भी मिलेगा कमाल मिलेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारा पाक परवरदिगार तुम्हारे लिए ऐसी जगहों से रास्ते बनाएगा जहाँ से तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। वो खालिक है, तुम्हारे लिए रास्ते तख्लीक करना उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए तवक्कुल करना फिर क्यों मुश्किल हो गया है। तवक्कुल तो समंदर को फाड़ के भी रास्ते बनवा देता है। दुनिया की बातों से कभी भी परेशान मत होना, बस इसी बात पर यकीन रखना। तुम्हारा पाक परवरदिगार पता है कुरान पाक में क्या कह रहा है। वो कह रहा है सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह के हाथ में है। दुनिया जो भी कहती रहे, आपने दुनिया की बातों को दिल पर नहीं लेना। बस यकीन रखना है कि फ़ैसला तो अल्लाह के हाथ में है। फिर दुनिया तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? कुछ भी तो नहीं। तहज्जुद हर चीज़ को बदल देती है। अगर आप मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, या आपके दिल को सुकून नहीं है, या आप शिद्दत से कुछ पाना चाहते हैं, तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू करें और आप अपनी ज़िंदगी में मौजज़े होते हुए देखेंगे। तहज्जुद सुकून है तो तहज्जुद का सजदा फाशा कून है। जब वो पाक परवरदिगार कुन कहता है ना, तो अंधेरे रास्ते मौजज़ों से रोशन हो जाते हैं। जैसे आप वीडियो सुनते और देखते हुए यहाँ तक मेरे साथ आ गए हैं, तो मेरे साथ दुआ में भी ज़रूर शामिल रहिएगा और आखिर पर आमीन भी ज़रूर कहिएगा। दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए मेरे पाक परवरदिगार, ए मेरे मेहरबान अल्लाह, ए वो ज़ात जिसके दर पर बैठकर इंसान कभी महरूम नहीं होता। या अल्लाह, जो इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, जो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, थका हुआ है, जो रो रो कर थक गया है, जो हर दुआ मांगकर मायूस हो चुका है, ए रब, आज की इस दुआ में उसे आराम दे दे, उसकी दुआ को कबूल कर ले। ए अल्लाह, उसकी बेख्वाबियों को राहतों में बदल दे, उसके आंसुओं को रहमतों में बदल दे, उसके ज़ख्मों पर शिफा उतार दे, उसके दिल पर सुकून उतार दे, उसकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे। जो मांग रहा है उसे अता कर दे, जो खो दिया है उसे बेहतर लौटा दे, जो टूट गया है उसे मजबूत बना दे, जो थक गया है उसे सहारा दे दे। ए रब, ए हमारे पाक परवरदिगार, उसके दिल में जो ख्वाहिश धड़क रही है, जिस दुआ को लेकर ये दिन रात रो रहा है, जिसे ये तेरे दर पर लाया है, ए अल्लाह, उस दुआ को उसके हक़ में बेहतरीन वक्त पर पूरा कर दे। ए मेरे मालिक, उसकी ज़िंदगी में वो मौजज़ा उतार दे जिसके इंतज़ार में उसका दिल सालों से बैठा है। वो खुशी दे दे जिसने उसके नसीब की दहलीज़ पर कभी कदम नहीं रखा। वो सुकून दे दे जो उसकी रूह की प्यास है। वो मोहब्बत दे दे जो उसकी तकदीर में लिख दी गई है। ए रब, उसे अपने नूर के साए में ले ले, उसे अपनी मोहब्बत का इंतखाब बना ले और उसके दिल की हर दुआ पर कुन फरमा दे। ए अल्लाह, जिसने आमीन कही उसकी तकदीर में वो खैर लिख दे जो कभी उसने सोचा भी ना हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।